آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. صدق اللہ العظیم. نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 6 اگست 2025، ایپیسوڈ ہمارا 130 الحمدللہ. اور آج ہم نے پڑھا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 to 58. انشاءاللہ ہم ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کی طرف جائیں گے. ایز جب، قالا کہا، اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں، متوفی کا میں فوت کرنے والا ہوں تجھے، وہ رافعو کا اور اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو، الیہ اپنی طرف، وہ مطہرو کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من سے، الذین ان لوگوں، کفرو جنہوں نے کفر کیا. کفرو کفر کرنا. وہ جائلو اور جائلو بنانے والا ہوں، الذین ان لوگوں کو، اتبعو کا جنہوں نے پیروی کی، کا یعنی تیری، فوقا اوپر، الذین ان لوگوں کے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، الا تک، یوم یعنی دن، قیامہ یعنی قیامت کے، ثم پھر، الیہ میری طرف، مرجعوکم لوٹنا ہے تم کو. احکمو میں فیصلہ کروں گا، یعنی تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما جس میں، تم تھے، فیہی میں، تختلفون اختلاف کرتے تھے. اب ان آیتوں کا پورا ترجمہ دیکھتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے. اس وقت میں
ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. یہ آیت نمبر 55 ہے. آیت نمبر 56 کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم. آیت نمبر 56 56. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمَّا پس فَأَمَّا یعنی پس الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فَأَعَذِّبَهُمْ فا یعنی پس تو عذب اعذب میں عذاب دوں گا ہم ان کو عذاباً شدیدہ عذاب یعنی عذاب شدیداً یعنی سخت فی یعنی میں الدنیا یعنی دنیا میں والآخرت یعنی اور آخرت میں وما اور نہیں ہوگا لہم ان کے لیے مین یعنی کوئی ناصرین مددگار جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. یہ آیت نمبر آل عمران کی 56 تھی. 57 ہم دیکھتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن الَّذِينَ وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وہ عاملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک وَيُوَفِّيهِمْ پس میں ان کو پورا دوں گا. یوفا پورا دوں گا. اجورکم اجور اجر کی جمع ہے. اجور ان کے اجر. واللہ اور اللہ لا نہیں یحب محبت رکھتا ہے پسند کرتا ہے اور ظالمین ظالموں سے یعنی ظالموں سے اللہ محبت نہیں رکھتا. ترجمہ ہے آیت 57 کا. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے دیے جائیں گے اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. آیت نمبر آل عمران کی 58. ذالکا یہ نتلوہ سنا رہے ہیں وہ اس کو علیکا آپ پر من سے آیاتی جمع ہے آیت کی. آیات و ذکری اور ذکر میں سے الحکیم حکمت والے. آیت نمبر اس کا ترجمہ 58 کا. یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. دیکھیے یہ آیت تھی ہمارے 58 سے 55 سے 58 جس کا ہم نے ترجمہ اور ایک ورڈ کا ترجمہ بھی دیکھا اور پوری آیتوں کو بھی ترجمہ دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں ان کی ربط آیت پھر ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آگے کے. ربط آیت یعنی پہلی آیت ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی اور آج جو ہم آیتیں پڑھیں گے ان دونوں کا کیا لنک ہے کیا تعلق ہے کیا ربط ہے یہ دیکھیں گے. دیکھیے پچھلے آیتیں جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پڑھا تھا. پہلے ربط آیت اس کی کیا ہے کہ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی. ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا. نمبر 2 پڑھا تھا انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ صرف اللہ کی عبادت کرو یہ بات تھی. تیسری جملہ ہم نے جو پڑھا تھا گزشتہ آیت میں کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرتا ہے نا. خیر الماکرین ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر یعنی پلاننگ کرنے والا ہے. آج جو ہم پڑھیں گے جو ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا الحمدللہ تو ہم اس میں پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی یعنی آسمان کی طرف اٹھانے کا ذکر. دوسرا ہے کہ یہ جو منکرین تھے یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے یہودی ان کے بارے میں اور جو ایمان لائے یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ان کے لیے خوشخبری دی گئی ہے. یہ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور کفار کے لیے گویا کہ یہاں پر وعید اور ڈراوا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اور ایک آیت جو ہم آخری پڑھیں گے 58 جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں پوری آیت کو. کیا آیا تھا کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے
तुवफ़्फ़ा मुतवफ़्फ़ी का, तो तुवफ़्फ़ा कहते हैं पूरा पूरा लेना, तुवफ़्फ़ा कहते हैं पूरा पूरा लेना, यानी जिस्म व जान के साथ ले लेना। देखिए यहाँ पर चंद बातें तवज्जो तलब है। सबसे पहली बात ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ यहूदियों की नापाक साजिश थी। क्या साजिश थी? कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो भेजे गए थे बनी इसराइल में, यहूदी पर क्या उतरी थी? तौरात, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली थी, उसमें भी अहकामात थे और शरीयत के अहकामात थे। उसके बाद देखिए ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के ईसा अलैहिस्सलाम को जो उनकी जो किताब थी इंजील, उसको मतलब बरकरार रखा गया और उसके अंदर क्या था कि मौइज़ा थी, दुआओं का ज़िक्र था उनकी किताब में। तो देखिए तमाम पैगंबर जो है पहले दिन की तस्दीक कर आ रहे हैं। हर पैगंबर ने अपने पहले दीन की, अपने पहले नबी के दीन की तस्दीक की है। और दीन देखिए हमेशा याद रखिए कि शुरू से आखिर तक एक ही रहा है। हर दौर में पैगंबरों ने जो दावत दी पेश की है वो एक ही दावत रही है, तौहीद की दावत ही सबने पेश की। हाँ, शरीयत के अहकामात में थोड़ी तब्दीली रही है, लेकिन दावत जो है तमाम पैगंबरों की एक ही थी। तो देखिए यहाँ पर यह हुआ कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा कि मैं तुमको उठाने वाला हूँ। एक बात पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसमें देखिए आपको मैंने जो सवालात भेज चुकी हूँ आज के, उस सवालात को भी हल करने में आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि हम आपको उठा लेंगे। एक बात ये। दूसरी बात देखिए यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 5 बातें का वादा किया गया। 5 बातें कही गई है ईसा अलैहिस्सलाम से। क्या है? सबसे पहले ये बात कही गई कि यहूदियों ने देखिए वहां पर साजिश उनकी नाकाम बनाई गई। क्या साजिश की थी उन्होंने? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से खिलाफ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको नसीहतें की, उनको बुराइयों से रोका टोका, तो उन पर यह देखिए बहुत गिरा गुजरा। यहूदियों ने क्या किया, जैसा आपने शायद पहले भी आपको इसका तस्करा हुआ होगा, यहूदियों ने यह किया कि वहां जो रूमी अदालत थी, वहां पर जो रूम का जो वहां पर अदालत थी, जो वहाँ जज था, वहां पर मुकदमा ले गए और ईसा अलैहिस्सलाम को सलब दी जाए, फांसी दी जाए। ये यहाँ पर उनसे ये बात कही। देखिए वहां पर ये हुआ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको टोका तो इस तरह उन्होंने ये काम किया, तो बहरहाल अल्लाह ताला ने देखिए उनकी जो ये खुफिया साजिश थी उसको नाकाम बना दिया। कैसा नाकाम बना दिया कि एक जगह उनको रखा गया और जिसने उनके साथ गद्दारी की है ने उनके बास कहते हैं कि उनके हवारियों में से था जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की निशानदेही की थी। तो अल्लाह ने देखिए उनको तो बुलंद कर लिया, उनको उठा लिया। कैसा उठा लिया? जान के साथ भी, जिस्म के साथ भी और उनके रूह के साथ पूरा उठा लिया। देखिए ये भी बात याद रखिए कि जब मौत आती है तो सिर्फ रूह जाती है, जिस्म तो यही रहता है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तुमको उठा लेंगे, मतलब जान के साथ भी उठाएंगे, रूह के साथ भी उठाएंगे और जिस्म के साथ भी उठाएंगे। तो देखिए उस गद्दार ने जिसने गद्दारी की थी, उसकी गद्दार को उनकी शक्ल बना दी गई ईसा अलैहिस्सलाम, और उसी को सूली दी गई। और ये कयामत तक देखिए शुबा में है नसारा। तो देखिए ये है मुतवफ़्फ़ा के मायने कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम तुमको पूरा पूरा उठा लेंगे। एक बात ये। अब दूसरी बात क्या कही जा रही है कि अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ उठा लेंगे, यानी बुलंद फरमा देंगे। कैसे? जिस्म के साथ, रूह के साथ और जान के साथ। लेकिन जब मौत आती तो क्या होता है? रूह अलग हो जाती। तो देखिए तीसरी बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तुमको पाक कर देंगे। ये उम्मतियों का हम तुमको ऊपर उठा लेंगे हमारी तरफ, वो मुताहिरों का हम आपको पाक कर देंगे। यानी पाक कर देंगे मतलब कौन से कैसा पाक करेंगे? क्योंकि देखिए
अल्लाह ताला उन दुश्मनों ने जिनों के पर तोहमतें लगाई थी ना, कि उनके पैदाइश पर तोहमतें लगी, तो वो तोहमत को भी अल्लाह ताला ने झूठा करके उनको पाक कर दिया। और फिर देखिए उनके मोजेजे को भी वो जादू कहते थे, अल्लाह ताला ने उससे भी उनको पाक कर दिया। फिर आगे कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, हम वो मुताहिरों का मिनल लजीना कफरू व जाइल लजीना तबऊ का, हम आपके मुत्तबीन और उन जो आपकी इत्तेबा करने वाले हैं नसारा, जो सच्चे लोग थे, और जो मुनकरीन है यानी जो आपका इनकार कर रहे थे ईसा अलैहि सलाम का, अल्लाह ताला फरमा रहे कयामत तक जो है हम उनको आप पर यानी ईसाइयों पर गालिब आने नहीं देंगे, बल्कि ईसाई जो है यहूदियों पर गालिब आएंगे। ये अल्लाह ताला कुरान में वादा कर रहा है। फिर कहा जा रहा है कि हमारी ही तरफ तुमको क्या है, पलट कर आना है। और आज तक देखिए हमेशा भी ऐसी हुआ कि यहूदी जो है ईसाइयों के हाथों कई मर्तबा उनकी पिटाई हुई। हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तारीख में जाकर, तो यहूदियों की बहुत मर्तबा ईसाइयों की जो है पिटाई हुई। और आज भी अगर हम देखें तो वो देखिए यहूदी गालिब नहीं है, हालांकि उनकी पुष्ट पनाही जो है उनकी ईसाइयों की है। अगर ईसाइयों का हाथ हट जाएगा ना, तो वो उनके अंदर कुछ भी दम नहीं है, कुछ वो इतने मजबूत नहीं है। तो क्यों, ये कुरान की मुदल्लल दलील है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उनको गालिब नहीं आने देंगे कयामत तक। और फिर आखिरी बात के कयामत के दिन जो भी इख्तिलाफात किए हैं उन्होंने, उसका तमाम का फैसला होगा। जो जो इख्तिलाफ किए, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इख्तलाफ हुए, ईसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, तो ये तमाम फैसला जो होगा वो कयामत के दिन होगा। ये 5 वादे जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने किए, ये आयत नंबर 55 में थे। अब आगे की आयत देखिए 56, फअम्मल लजीना कफरू, अल्लाह ताला कह रहे कि जिन्होंने इनकार किया है, और जिन्होंने इनकार किया तो क्या करेंगे अल्लाह ताला, उनको सख्त अजाब देंगे। तो ये देखिए कुरान का तो ये अंदाज है तरबियत करने का। अल्लाह ताला डराते भी है अजाब से, और रहमत और नेमतों की खुशखबरी भी देते हैं। ये अल्लाह ताला के कुरान का अंदाज बयान है, इस तरह उस्लूब है कुरान का। क्या है, ये एक स्टाइल है कि दुनिया और आखिरत में उनको अजाब होगा, और कयामत से पहले और होगा। ये यहूदियों के ताल्लुक से बात आ रही है, तो कयामत से पहले वो सब मिट जाएगी। आगे हम इंशाल्लाह देखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह आएंगे दोबारा, फिर क्या होगा आगे हम देखते हैं। पहले इतना समझ लीजिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि दुनिया और आखिरत में उनको सख्त अजाब होगा। और देख रहे हम कि यहूदी आज भी भुगत रहे हैं गरीबुल वतन की जिंदगी है। मैप में उनका कोई भी नक्शा नहीं है। देखिए यहूदियों का आज भी अगर हम देखते हैं तो यहूदियों का कोई मैप में कोई उनका वतन या उनकी कोई जगह ये नजर नहीं आती है। ये क्या है, ये कुरान की दलील। अल्लाह ताला कह रहे कि हम उनको दुनिया में भी अजाब देंगे और आखिरत में भी, वमा लहुम मिन नासिरीन, उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। तो देखिए बंदों के पास चॉइस, कबूल करना नहीं करना। अगर कबूल करते हैं मानते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है, और अगर नहीं मानते हैं, रद्द कर देते हैं, इनकार करते हैं, एहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो अल्लाह ताला का अजाब और अल्लाह का डराव। यह है आयत नंबर 57, 56 थी, अब 57 हम देखते हैं क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला। हाँ, ये आयत दोनों भी इसमें हो गया कि फम्मल लजीना आमनु, जिन्होंने ईमान लाए और नेक अमाल किए, और तो अल्लाह ताला पर युवफीहिम, हम उनको पूरा पूरा देंगे। देखिए यहाँ पर भी युवफा आया है, और वो तुवफ़ा है, मुतवफ़्फ़ी है, तवफ़्फ़ा। यहाँ पर युवफ़्फ़ी यानी पूरा पूरा देना। उजूरहुम, उनका अज्र, और अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए वही खुशखबरी है नेक लोगों को, और ऊपर की आयत में ना मानने वालों को डरावा था। तो अल्लाह ताला का इसी तरह स्टाइल है तरबियत का कि वो नहीं कर, जो काम नहीं करते हैं उनको डराया जाता है, इनकार करने वालों को डराया जाता है, और मानने वालों को, एहकाम की पैरवी करने वालों को रहमतों नेमतों की खुशखबरी दी जाती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिन्होंने ईमान लाया है और नेक अमाल किया है। देखिए ये हमारे लिए, हमको भी समझना चाहिए क्या है ईमान लाना, अल्लाह पर भरोसा करना, एतमाद करना, झुका देना, यकीन करना, है ना। ईमान की बहुत मीनिंग, बहुत माने। तो क्या है, अल्लाह पर ईमान लाना। उसके बाद सिर्फ ईमान नहीं, ईमान से नहीं चलेगा, उसके बाद अमलुस सालिहात, ये कड़ी शर्त है। देख, ईमान और अमल सालिहा। अमल सालिह यानी किसको कहते हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए हो, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
सीरत के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो। ये देखिए ये कामयाब है, जो अल्लाह ताला के रजा के लिए अमल किए जाए और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर किए जाए, तो वो है अमल जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो यहाँ पर देखिए उनके लिए खुशखबरी दी गई है, जो नेक अमल करेंगे और ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी अमल कर रहे हैं वो क्या है, उनको उसका अज्र पूरा मिलेगा। चाहे हम जो भी कर रहे हैं, जो हम इबादतें कर रहे हैं, चाहे हमारा अकीदा हम सही रख रहे हैं, अल्लाह के अहकाम की पैरवी कर रहे हैं, माशरे में मामलात को सही कर रहे हैं, माशरे में हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की चाहत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के अहकामात को पूरा कर रहे हैं, तो ये है अल्लाह ताला फरमा रहे कि किसी भी अजरों को हम छोड़ेंगे नहीं। किसी जो भी नेक अमल करता है, जर्रा से जर्रा भी नेकी कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसको पूरा पूरा अजर देंगे। ये अल्लाह का वादा है। और आपको पता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का अज्र देने का अंदाज कैसा है, एक के बदले एक नहीं होता है, अल्लाह ताला एक के बदले में 10 देता है। फिर जितना उसमें इखलास होगा, जितना खुलूस होगा, जितनी लिल्लाहियत होगी, उतना ही अल्लाह ताला अज्र बढ़ाते जाएगा। वल्लाहु ला युहिब्बुज ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। जुल्म करना, जिसका हक है उसको नहीं देना, ये जुल्म है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला जालिमों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। ये आयत 57 थी, आखिरी आयत है सूरह आले इमरान की। 58 अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं, ज़ालिका नतलूहु, ये आयतें हैं हम तिलावत करते हैं आप पर। अल्लाह ताला फरमाए, ये जो आयतें जो ऊपर बयान की गई है ईसा अलैहिस्सलाम का, जिसमें बयान है, अल्लाह ताला फरमाए वो हकीकत है, वो हकीकत बयान है जिसको अल्लाह ताला बयान फरमा रहे कुरान के जरिए, क्योंकि कुरान हक है और सच्चा है ना। सूरह निसा 87 और 122 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच बात करने वाला कौन हो सकता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से बढ़कर सच बात किसकी हो सकती है। तो देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तिलावत करते हैं, हम बताते हैं, ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया जा रहा है। ये देखिए सदियों पुराने वाकयात, तकरीबन 600 साल पुराना वाकया बताया जा रहा है, जो कि अल्लाह के रसूल की रिसालत की सदाकत की दलील, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेजे गए हैं, अल्लाह ताला ने जो आपको रसूल बनाकर भेजा है, ये रिसालत है, तो ये सदाकत की दलील है कि अल्लाह के रसूल पुराने सदियों के वाकयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर जारी है और अल्लाह ताला के रसूल उन बातों को बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि ये वो आयतें हैं, हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, उसकी अलैका आप पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुराने वाकयात को बताया जा रहा है, जो कि वही के जरिए बताया जा रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मिनल आयाती व जिक्रिल हकीम, ये अल्लाह की आयतें हैं और जिक्र हकीम है। अल्लाह ताला की आयत है, हिकमत से लबरेज तस्करे है, हिकमत भरे हुए, हर उसमें हिकमत है। हाँ, तो अल्लाह ताला यहाँ पर इस बात का तस्करा कर रहे हैं। तो देखिए ये आयतें थी जिसका हमने अभी मुताला किया। इसका हासिल मुताला क्या है, क्या है, हमने मतलब जो पढ़ा है उसका हासिल मुताला क्या है। तो एक तो ये कि देखिए अल्लाह ने जो वादा किए हैं वो पूरे फरमाए, नेकी करने वालों को अल्लाह ताला अज्र ज़ाई नहीं करता, और अल्लाह की आयत में शक नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की आयत बरहक है। अब एक बात देखिए, एक सवाल आप लोगों से, मैं बताती हूँ उसका जवाब भी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस, हमको ये बात पता चली है कि ईसा अलैहि सलाम दोबारा तशरीफ आवरी होगी। इस पर ये हमारा अकीदा है, क्योंकि देखिए अभी तो बुलंद किया गया, आसमान पर उठा लिया गया, लेकिन दोबारा वो तशरीफ लाएंगे। आज जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, लेकिन ईसा अलैहि सलाम कयामत के कब्ल तशरीफ आवरी होगी आपकी, ये हमारा अकीदा है। क्योंकि मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की, कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ईसा अलैहि सलाम का नुज़ूल होगा और एक बार फिर पूरी दुनिया पर ये दीन इस्लाम गालिब होगा इंशाअल्लाह ताला, और यहूदियों का पूरा पूरा यहूदियों को मिटा दिया जाएगा। जैसे हदीस के मफहूम है
کہ جہاں ایک درخت، ہر درخت کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی، شجر حجر سب کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک یہودیوں کو مٹا دیا جائے گا. عیسی علیہ السلام آئیں گے اور پھر وہ صلیب کو ختم کریں گے، توڑ دیں گے اس کو. خنزیر جس کو کہ آج ہر چیز میں حلال کر دیا گیا، نعوذ باللہ، جو چیز کو حرام کیا گیا تھا ہر شریعت میں، چاہے وہ عیسی علیہ السلام کی شریعت ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو. یہ قرآن ہے جو آج ہمارے سب کے لیے یہی برحق کتاب ہے، سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس میں بھی نام لے کر حرام ہے، نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر حرام کیا ہے، لیکن آج دیکھیے اس کو دھڑلے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے، سب زمین کو پاک کریں گے اور زمین پر دین غالب آ جائے گا. پھر تو دیکھیے یہودیوں کو پورا مٹا دیا جائے گا. یہ دیکھیے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے جس پر قرآن اشارے بھی کر رہا ہے، اور احادیث میں تفاصیل بھی ہے. حدیث میں اس کی تفصیل بھی آئی، بڑی تفصیل سے حدیث ہے. انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملے تو ہم اس کو پڑھیں گے، اور پڑھنا بھی چاہیے. تو یہ ہے دیکھیے بات کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. تو یہ تھی ہماری اس کی تشریح. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ لیے ہوگے، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کے. انشاءاللہ اگر کچھ چیز نہیں سمجھی ہے تو ہم آپ سوالات کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیے یہ آیت ہے، آیت 55 سے 58 تک، اور اس کو ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا، اس سے ہم نے جو حاصل کیا، حاصل مطالعہ بھی ہم نے اس سے سمجھا، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی ہم نے سمجھے. کیونکہ دیکھیے